Okay, get rid of these lines. So we have a method main. So let's create instance of forest first. So forest equals new forest done, then forest dot name. Fine. We're just calling our name method. Run as application. Forest name is XYZ. Nothing special about it. It's good. Just creating a separator. Now let's create instance of tree. forest Tree equals new tree. Then tree dot. Since we have an inheritance, tree class can also access the method present in forest class. So if I run this code, it says again forest name is XYZ. I mean that looks ugly. I mean yeah, that's good that we can see inheritance in action. That's great. Tree class is empty, but because we have extends keyword, so it can access all the features present inside forest class. called So far override. we can see method. We haven't seen yet the variables and other stuffs together. Just taking one just when you are learning, so take one step at a time. Don't just run. You will fall easily. So we have created a class, create a simple method, and then use the extend keywords because that's how we create inheritance or achieve inheritance, and done. We have seen this till inheritance. Now we are talking about overriding. So here what we will do, we will override the method coming from parent class inside child class. Fine. This is what we're going to do. So how to do that and why to do that? Here we can understand why. See, Forest. I have said tree dot name. So I'm expecting some tree name, right? But what I'm getting, forest name. That's ugly. Why I need to get forest name? I'm looking for tree name. So tree has a different characteristics. Maybe it's a child of forest, that's fine. But tree has its own characteristics, its own behavior. Think about again the real world, parent and child. So parent has a different personality. So we cannot say that if parent has this personality, so child will also act and react the same way. They have their own personality, their own characteristics, their own persona, right? Same way, in inheritance, it happens. Forest class has a name, that's fine. So definitely, child will inherit the last name of the parent, but they cannot have the same name like their parent have. They will have something different. Then after they can use their parent name after their name, but something must be different. So same thing will happen here. They need to override the method coming from the forest class. This time I'll say tree name is ABC. Done. So what we just did, we have overridden the method coming from the parent class. The only rule is you have to keep the same signature. That's the first rule. Later, it can be modified if you see some more rules of inheritance. There are certain rules which I will cover later. But for now, initially, if you want to override the parent class method, just copy this entire stuff that is method signature and paste it as this. Then you can change the content of that method. But keep the name, return type, everything same. Don't change anything. We're not here to clear the what do you call that um, big OCJP exams. So for now, just copy and paste. That's it. And if I run this time run the code, you might see something else. So let me put it that first. Okay, now I'm going to run the code. Run as application. Now everything is same here. Nothing is changed except inside tree class, and that is the name here. And tree name is ABC, and this is known as method overriding. And this happened when your code is actually running. Compile time, nothing happened. It's not detecting at compile time. It is happening and detecting it at runtime. So any question or doubt here, or anything I should add here to make it more clear? Any concern? Please let me know. Polymorphism is quite simple when it comes to when actually we are beginning it, but you can expect lots of other quite typical question or some twisted questions. But initially, if you consider this image, this scenario, it's quite straightforward.
No doubt? Okay. No, So, sir. okay. Fine, fine. So this is method overriding. Yep. So this is more than enough for now that we have a concept of polymorphism. Polymorphisms of two type. One is by Runtime using, or you can say by polymorphism and compile overloading time the class, or sorry, polymorphism. overloading the method. One is overriding the method. Overloading happens within the same within the class, and runtime polymorphism happens into different class. Let me write here as well. What happens can be with with inheritance. Yeah. Okay, so this is runtime polymorphism. So that happens runtime. Again, this has a multiple scenarios. So not going to cover that. That's it about it. Next type is um, encapsulation, and encapsulation is quite straightforward, guys. It's not that tricky. Encapsulation is straightforward. Any idea about encapsulation? Sir, binding more classes in a single unit that are Binding more encapsulated. classes. Different type of classes. Why using classes? When you say class, that means it's just binded with, or you can say connected with classes only. Okay, that's fine. Manan, सर मनन नहीं है अभी. कहाँ गया? नेटवर्क गया उसका? पता नहीं सर, कहीं गया है. मैसेज किया था. ठीक है. तो इस केस में encapsulation happens. Encapsulating means wrapping things inside the class. That's it. I said things, not class, because when you say class, it's just classes only. Wrapping things inside. Inside is better within the class. ठीक है? Within the class. अब that thing can be methods, variables, blocks, whatever. ओके सर. So, example, simple Pojo class. Remember Pojo class? I told you earlier. यस Pojo सर. class. बस Pojo class है. तो अगर Pojo class याद है तो that is encapsulation. So, example is Pojo classes. इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा क्लास नहीं बना के कोई स्पेशल एग्जांपल नहीं बनाना. एक Java class which is concrete in nature, you can say that class is an example for polymorphism. Oh, sorry, yeah, not polymorphism, encapsulation. ये क्लास है जैसे ट्री क्लास है. This is encapsulated class. It contains one method. If I go back to basic classes, मैंने अभी कुछ क्लास बनाए जैसे कि ये है. इसमें क्या है? This is also encapsulated class. This class contains four methods. That's it. यस. So there is no proper, you can say, definition that okay, this class is an encapsulated class. Class with which contains variables, methods, blocks, and which is complete in nature. A concrete class. Fine. तो इसका मुझे कुछ एग्जांपल नहीं बना के देना कि ये क्लास ऐसे होगी. बट वो जो क्लास कैसे बनता है? आई थिंक मैं वो उतना कर लेते कि प्रोजेक्ट क्लास क्या होता है. तो एक सिंपल एनकैप्सुलेटेड क्लास कैसी होगी, दैट आई कैन एक्सप्लेन. पॉलिम पॉलिम्स. ओके, सो एनकैप्सुलेशन क्लास दिस. um इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, कुछ और करते हैं, इसका नाम कुछ और रखते हैं. लेट्स अ लाइन क्लास. सो विपिन, अगर हम लाइन क्लास की बात करें, सो व्हाट काइंड ऑफ फीचर्स यू विल सी इन अ लाइन क्लास? पहले तो मुझे एक वेरिएबल बताओ.
एक वेरिएबल जिसमें लाइन के फीचर ऐड कर सको, कुछ भी। थिंक अबाउट लाइन, एक वेरिएबल मुझे सर डिक्लेयर करना है। सर स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लो, पब्लिक स्ट्रिंग। और उसके आगे वेरिएबल का नाम क्या होगा? सर ब्रीड। सॉरी। सर एनीथिंग, आई थिंक ब्रीड वगैरह कि मतलब लाइन कैसा है, हेल्थ। अच्छा, ब्रीड कह रहे थे ना? यस सर। ठीक है, ओके, डन। अब मैं क्या करूंगा इस फील्ड के लिए, फॉर दिस फील्ड, यस सर। हाँ, मैं सेटर गेटर बनाऊंगा। आइडिया सेटर गेटर्स का, सेटर्स एंड यस गेटर्स। सर। सेटर्स एंड डेटा इज गेट, फॉर सेट वैल्यू एंड गेट वैल्यू। करेक्ट, नाम से पता चल रहा है कि सेटर यस फॉर सर। सेटिंग द वैल्यू, गेटर फॉर गेटिंग द वैल्यू। तो वो कैसे कैसे बनाते हैं, आइडिया है? हेल्प करो यस अगर सर। पता है तो बताओ। सर इसके नाम, या फिर हम यहाँ सोर्स से जाकर सेटर गेटर वो कर सकते हैं। तो क्या करना है, एम्प्टी स्पेस पे जाओ जहां जनरेट करना है। हाँ। कर्सर, अच्छा इसमें लाइन नंबर करता हूँ मैं, लाइन नंबर क्यों शो हो रहे थे, अब आ गए। ठीक है, तो लेट सपोज मुझे ये सेटर कटर लाइन नंबर 9 पे करना है, तो वहां पे कर्सर रखो ना बस, ब्लिंक होना चाहिए। और वहीं पे राइट क्लिक, जैसे बताया सोर्स पे गए, सोर्स। यस सर। गेटर सेटर, फील्ड को चेक करा, और ओके है ना, ऐसे ही करते हैं। यस यस सर। चलो, हो गया सेटर कटर कंप्लीट। तो उसको ऊपर रखते हैं, डन। तो अब इसमें मुझे फील्ड सेट मतलब इनिशियलाइज करनी है और गेट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्टर बना लेते हैं। उसको कॉल कर लेंगे हम लोग एनकैप्सुलेशन टेस्टर, एनकैप एनकैप्सुलेशन टेस्टर। तो लाइन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, डन। देन मैं क्या करूंगा, लाइन डॉट सेट सेट। ब्रीड, हाँ लेट्स से एशियन लाइन, हाँ। यस सर। और देन मुझे प्रिंट करना है अब। तो कुछ लाइंस ऑफ कोड है, देन आफ्टर आई विल से लाइन डॉट गेट ब्रीड, है ना। गेट ब्रीड रिटर्न्स स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग breed, although I can do that in one line, but for now it's fine. Breed of line is whatever the message, then breed. Fine. As of now, we don't have any other source. That's why I have hard coded it. In real projects, this will happen at runtime. User will send these values. So this will you will never write in a code. Mostly, it will come from the user side, from front end maybe, or maybe from database. And then your task would be get the things. So let's suppose this is coming from client side the value, and now you're trying to get it by get breed. So run as application, and bit of line is Asian. So line class is one of the encapsulated class with field and method. बस इतना ही encapsulation में, कुछ इसमें बड़ा सा एग्जांपल होने जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्ट्रा सिंपल। So wrapping things within the class like Pojo class. ये तो सिर्फ टेस्ट मैंने शो कर दिया कि हाउ टू यूज सेटस गेटर्स, विच वाज नॉट दैट रिक्वायर्ड, नॉट एट ऑल। ओए ओए ओए, idea was simple, create a Pojo class and access it, but you can see my field was public there. Usually that's not how we work, but that's fine, we are learning it. But usually we don't keep uh, public fields, they should be डेटा always private. प्राइवेसी। प्राइवेट कीप करते हैं सब। तो ये भी खत्म हो गया टॉपिक, दैट्स इट। सी, मुझे पता है मैं थोड़ा सा फास्ट खत्म किया इस टॉपिक को, पर मैंने स्किप नहीं किया। अगर फिर भी समझ नहीं आया कोई भी कॉन्सेप्ट, तो विपिन बोल सकते हो कि इसको रिपीट कर दो या इसको रिवाइज कर दो, हम वो कर सकते हैं। कोई भी चारों में से जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उस कॉन्सेप्ट में, या कुछ और पूछना हो तो। हमने लास्ट टू डेट ये एक्सट्रैक्शन कर। में आपने जो एक्सट्रैक्ट क्लास हम जब बना रहे थे, हम्म। तो उसमें आपने कल बोला था कि हम जो ऑब्जेक्ट मतलब एफटेक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। हाँ जी।
तो बट सर हम एफस्टेट क्लास को रेफरेंस एज ए रेफरेंस तो रख सकते हैं और ऑब्जेक्ट बिल्कुल कर किसी और सकते हैं। क्लास का। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, वो मैंने इसलिए बनाया कि चीज़ कॉम्प्लेक्स करनी है। मनन को अभी ये समझना है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसलिए मैं उसकी वजह से ये बताया नहीं कि रेफरेंस भी हो सकता है। यस एक्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म तो वहाँ चाहिए होती है एक और। एक तो हो गया, सर। चलो ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है कि रन टाइम कंपाइल टाइम। उस टाइम पे जो तुम कहते हो ना कि रेफरेंस होगा ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, ऑब्जेक्ट होगा और उसके चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास, यस सर। है ना? तो वो भी एक पॉलीमॉर्फिज्म कॉल है, पॉलीमॉर्फिक कॉल है वो। राइट साइड में होगा ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास, लेफ्ट साइड, सॉरी हाँ, राइट साइड में होगा चाइल्ड क्लास और लेफ्ट साइड में होगा पेरेंट क्लास। वो भी एक पॉलीमॉर्फिक कॉल है वो भी। पर अभी मैं बना दूंगा फर्स्ट टाइम में तो भाई कंफ्यूजन हो जाएगी ना। ये मैं धीरे धीरे यस बताऊंगा सर। चीजों को। अभी तो पहले ये समझे एब्स्ट्रैक्शन होता है, एब्स्ट्रैक्शन ऐसे अचीव करते हैं। सो व्हाट वी कवर्ड इन लास्ट 2 days कि जावा लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और पैराडिग्म्स को कैसे सपोर्ट करता है। तो हमने ओके, लेट्स रिवाइज इट एज वेल। तो कल अगर कोई ज्वाइन करता है, वीडियो को देखता है, उसको समझ में आ जाएगा। तो क्या करा है, if we say Java is object oriented language, so Java has to support inheritance, abstraction, polymorphism, and encapsulation, है ना? यस सर। So first point was inheritance. So Java supports or provides two keywords. It says if you use these two keywords properly, we can say Java supports inheritance. So extends के खुद के rule है that we saw with class, and implements works with interface. There we also learned about what is interface, how it works, what's the rule about it. Then next, if any language, not any, let's say Java. Java, if we say Java supports abstraction, so Java, so that concept must have interface or abstract class in the example. So how to achieve? Create abstract class and use it, or create interface, use it. So you can say interface is actually a part of inheritance, है ना? हमने ये भी देखा कि इंटरफेस में ने हम इंटरफेस को हमने इनहेरिटेंस में यूज करा। सो इनहेरिटेंस काफी कॉमन चीज है जो एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट देता है। सेम जो हमने नेक्स्ट देखा था आज, एब्स्ट्रैक्शन क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास विद इनहेरिटेंस, वो भी सपोर्ट करता है, प्लस पॉलीमॉर्फिज्म। सो जावा एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है। टुडे व्हाट वी सॉ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते, सो व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ चाइल्ड क्लास ऑफ इट। यस सर। So that's what we did there. We created a child, that is child, then extend draw shape, and then create the object of child class and access it, because compiler does not supports instantiation of abstract classes. So you cannot do that. Okay, so abstraction was completed. Then we saw polymorphism. So Java also supports polymorphism, and it has two types: compile time and runtime. Compile time is quite easy because it happens within the same class. And we also call this overloading. Usually we overload methods। देखो समझो इस बात को कि पॉलीमॉर्फिज्म जब आ रहा है तो वहां पर हम मेथड्स की बात करते हैं, क्योंकि क्लास का काम सिर्फ एक फीचर देना है, बड़ा फीचर। ओके सर। और उस फीचर के मल्टीपल सब पार्ट्स होते हैं जो हम मेथड्स के थ्रू देते हैं। जैसे अभी हमारे पास हाउस है, हाउस एक बड़ा फीचर है ना? उसके अंदर यस मल्टीपल सर। सब फीचर्स होंगे। तो एक हो गया फ्लोर हो गया, अब इसको हम रूम कह सकते हैं, किचन कह सकते हैं, वॉशरूम कह सकते हैं, और क्या बोलते हैं, विंडोज कह सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स होते हैं उसके, कलर, पेंट, कर्टेन्स। थिंक अबाउट, वी हैव लॉट्स ऑफ फीचर्स इन हाउस। सो मैंने एक पिक करा फ्लोर और उसको ओवरलोड करा, कहाँ किया, विद इन द सेम क्लास। सो हमने क्या करा, हमें रिक्वायरमेंट थी कि फ्लोर तो मल्टीपल हो सकते हैं, तो एक मेथड होगा जो ग्राउंड फ्लोर को देखेगा, जो दूसरा मेथड होगा वो सेकंड फ्लोर को देखेगा, या कुछ भी करेगा, बट method remains same. So if that's a requirement that we cannot change the method, so what you can do, you can pass different arguments, different types of arguments, and that's how we achieve compile time polymorphism। इसको रन टाइम की जरूरत नहीं, क्योंकि रन टाइम तब होता है जब इनहेरिटेंस पे करना होता है। यहाँ पे तो एक ही क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया और मेथड्स कॉल कर लिए एज पर देयर आर्ग्यूमेंट्स। देन वी सॉ रन टाइम polymorphism, and that was again टेकिंग हेल्प फ्रॉम इनहेरिटेंस। सो इसको इनहेरिटेंस चाहिए होगा तो दैट मीन्स दो क्लास चाहिए होंगे। सो आई क्रिएटेड टू क्लासेस, फॉरेस्ट एंड ट्री। फॉरेस्ट एक्ट्स एज अ पेरेंट क्लास, ट्री एक्ट्स एज अ चाइल्ड क्लास, एंड ट्री एक्सटेंड्स फॉरेस्ट। और रूल ये है कि ट्री का खुद का बिहेवियर होगा। इनिशियली आई वाज प्रिंटिंग, आई वाज नॉट ओवरराइडिंग दिस नेम मेथड। सो ट्री क्या कर रहा था, पेरेंट क्लास का नेम मेथड को इनहेरिट कर रहा था, और जब भी कॉल करे तो पेरेंट का मेथड प्रिंट कर दे रहा था। अब मुझे चाहिए ट्री का नाम, वो प्रिंट कर रहा है फॉरेस्ट का नाम। दैट डजंट मेक एनी सेंस। सो हम क्या कर सकते हैं, उस फीचर को ओवरराइड कर सकते हैं। तो ये कब होता है ओवरराइड, रन टाइम पर। तो इसका रूल क्या है मेथड ओवरराइड का, कि कीप द सेम मेथड सिग्नेचर एज ऑफ योर
class parent class has. So public void name. Keep the same name. That's the first Yes, rule. sir. Again, there's certain other rules as well. How you can make it public, private or what could return type and आर्ग्यूमेंट्स अभी हमने देखे नहीं क्योंकि वो एग्जाम्पल को कॉम्प्लेक्स कर देता है। तो मैंने सिंपल लिखा एक मेथड और सेम नाम नीचे लिखा और इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट कर दी। सो इनिशियली पेरेंट वाज प्रिंटिंग फॉरेस्ट नेम इज XYZ, नाउ आई एम प्रिंटिंग ट्री नेम इज ABC। देन कॉल करो तो वो खुद के मेथड्स को प्रिंट कर देंगे। खुद का दोनों का खुद का बिहेवियर है बट स्टिल ट्री इज चाइल्ड ऑफ फॉरेस्ट क्लास। अच्छा ये बताओ, Yes, sir. इतना क्लियर हो गया विपिन? Yes, sir. अब ये बताओ मुझे नेम कॉल करना फॉरेस्ट का है ट्री के अंदर से, वो कैसे पॉसिबल है? सर अगेन रिपीट, क्या कह रहे हैं? नेम किसे कॉल करना है, कहाँ से? ट्री क्लास के अंदर से मुझे फॉरेस्ट क्लास का नेम मेथड एक्सेस करना है। ट्री क्लास से फॉरेस्ट सर सुपर क्लास, क्योंकि वो अपने ऊपर के ऑब्जेक्ट को रखता है। हाँ तो बताओ कैसे, कहाँ क्या लिखूं मैं? मुझे सर ट्री क्लास से उसका भी चाहिए इम्प्लीमेंटेशन। हाँ फॉरेस्ट का तो सर ए बॉडी में जो पहली लाइन हमारी सुपर क्लास हो जाए, सुपर ब्रैकेट बस, आई हाँ। थिंक। तो सर यहाँ कह रहे हो इसके बाद यहाँ पर? यस यस सर। अच्छा तो क्या लिखूं? SUPER? यस सर, एंड उसके देन बाद ब्रैकेट ब्रैकेट पर। यस सर, देन सेमीकोलन? यस सर। यार ये तो एरर दे रहा है, क्यों? ये पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने करते हैं हम लोग, मेथड को नहीं। मैंने क्या कहा, मेथड चाहिए मेरे को। यस सर, यस एक और कंस्ट्रक्टर। सुपर कीवर्ड का एक और रूल है कि वो तुम मेथड में यूज नहीं कर सकते, वो कंस्ट्रक्टर में ही जाएगा। यस, ओ यस सर, मैं ठीक भूल है, गया था। तो ये तो यस सर। हो ही नहीं सकता। ये तो अभी कई को पता भी नहीं होगा जो अभी क्लास में है नहीं, वो बस मजे कर रहे हैं। तो सुपर डॉट लगाते हैं हम लोग, ठीक है? ऐसे आएगा। ओके सर, ये मुझे नहीं पता था। ठीक है। हाँ, तो जो सुपर जो तुमने मुझे बताया वो वाला वो होता है कंस्ट्रक्टर कॉल। इसको यहाँ लगा देते यस हैं। सर। इट्स कंस्ट्रक्टर कॉल should be called from constructor only. Okay, that's the second rule. First rule actually, constructor only. Next rule is should be the first statement, है ना? Should be the first फर्स्ट statement of the constructor. Again, कंस्ट्रक्टर में ही कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट लाइन ये होना चाहिए, तभी काम करेगा, ओके वरना सर। कंपैटिबल रहेगी। और मेथड और में कुछ? कॉल होगा तब ऐसे ही होगा, मतलब सुपर डॉट मेथड नेम देन हाँ, कॉल। ये सर कंस्ट्रक्टर कॉल है, ये सुपर कीवर्ड है। बोलिए। सर अगर हम सुपर डॉट मेथड नेम हम्म, किसी कंस्ट्रक्टर में लिखेंगे तो कॉल होगा? कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर डॉट लिखाओगे? सर किसी अच्छा कोई चलो, ट्री का एक इतना रन कंस्ट्रक्टर करता हूँ बनाते हैं। फिर वो दिखाता हूँ। हाँ बताता हूँ। किसका एग्जांपल चाहिए? ओवर ओवर राइडिंग। राइटिंग का है। तो अब इसको रन करते हैं तो दो बार प्रिंट होगा इसका, है ना? फॉरेस्ट का पहले प्रिंट हुआ क्योंकि हमने सुपर डॉट लिखा है। अच्छा एक चीज और, क्योंकि ये कीवर्ड है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं है, तो वो तुम उसको नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो। दैट शुड ओके ऑल्सो सर। वर्क, क्योंकि कीवर्ड है, कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं है। कंस्ट्रक्टर कॉल हमेशा पहला होता है। सो इट्स टोटली अप टू यू, यू वांट टू कीप इट फर्स्ट लाइन, मिडिल और एट द एंड, बोथ विल वर्क। अब ये मैसेज नीचे आ जाएगा, है ना? पहले प्रिंट करेगा क्लास का कंटेंट, फिर पेरेंट क्लास का मैसेज। ठीक है, तो सुपर कीवर्ड कहीं भी यूज हो सकता है, पर सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल शुड बी ऑन फर्स्ट लाइन विद इन द कंस्ट्रक्टर ओनली। मेथड में तो काम ही नहीं करता। अब बताओ क्या कह रहे हो, क्या करने के मैं लिए चाह कह रहे रहा हो इसमें? सर, अगर हम ट्री नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाए और उसमें हम सुपर डॉट नेम कॉल करें तो? अच्छा अच्छा ठीक है, चलो वो भी देख लेते हैं क्विकली। इसको पहले सेलेक्ट देते हैं। तो ट्री का एक कंस्ट्रक्टर बनाना चाह रहे हो, बना लेते यस सर। हैं। डिफॉल्ट ऑफ ट्री क्लास, ठीक है। और इसके अंदर चाह रहे हो कि सुपर डॉट आ जाए, यस सुपर सर, डॉट क्लास डॉट, नेम नेम। ठीक, दोनों जगह काम करेगा। यस ओके। क्योंकि वो एक कीवर्ड है, वो बस एक कीवर्ड है जो क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर है ऑलरेडी, वो क्लास को रेफर कर सकता है, पेरेंट क्लास को कर सकता है। तो ये तो काम कर ही जाएगा, इट्स नॉट अ सरप्राइजिंग थिंग।
सरप्राइजिंग थिंग इज दिस वन, सुपर लगाते हैं, ये लगाया, कोई इशू नहीं है। इसी को अगर मैं कट करके यहाँ लगा दूं तो एरर देगा। ये रहा, शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्टर, है ना। इवन ये खुद भी बोलेगा कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ कंस्ट्रक्टर, तो ये पहले ही जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी हमने कवर नहीं किया है, तो वही हम देखेंगे। ठीक है, पर मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, कभी अगर जरूरत पड़ी तो देख सकते हो। ओके विपिन। यस सर। ओके मनन वापस आए? नो आइडिया सर। तो नो आइडिया, मनन नहीं है वापस, तो बताओ अभी कुछ और पूछना है? सर एक चीज और सर। बोलिए। सर मैंने बोला था इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए फॉर अच्छा अरे प्रिपरेशन। हाँ यार, वो नहीं तो याद है सर मेरे को। पर सर ये तो सर्च कर लो ना, क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है? बढ़िया से गूगल सर्च मारो, नहीं मिल रहा? ये चलो सर तुम्हारा मिल समझ जाएगा। करता हूँ। मैंने सोचा सर मे बी आप के पास पूछूं। नहीं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उनकी कॉन्सेप्ट बड़ा मुश्किल है, मतलब देखते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस और नहीं, वो नजर मारता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस बनते तो हैं, पर मुझे बहुत टाइम हो गया इनको सर्च किए हुए, किसी के लिए या किसी को हेल्प करनी हो या खुद देखना हो समझाने के लिए। पर यहाँ से पिक कर सकते हो कोई भी एक साइट से, ये साइट एड्यूरेका सही है या फिर गीक फॉर गिग्स, ये दोनों साइट फॉलो कर सकते हो, और क्या मत जाना, बाकी साइट्स में मुझे भरोसा नहीं है। ओके सर। एग्जाम्पल्स खुद के देखो, जरूरत नहीं कि तुम इनके एग्जाम्पल पढ़ो, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल पढ़ना है इन्हें, एन ऑब्जेक्ट इन सेंस ऑफ क्लास दिस इज दिस। अब यहाँ पे इन्होंने कितना सारा कोड लिख दिया, क्या जरूरत है लिखने की, सिंपल कोड लिखो। ऑब्जेक्ट ही तो बनाना है, ऑब्जेक्ट तो बना दो यस स्टूडेंट, सर। ये रहा ऑब्जेक्ट का कोड, अब इतना कोड क्यों लिखना है ऑब्जेक्ट समझाने के लिए? जो पहले बच्चे थे बोले यार ऑब्जेक्ट के लिए इतना इतना बड़ा कोड लिखना पड़ता है, अरे नहीं लिखना पड़ता। यहाँ बेसिक्स में जाओ, हमने क्या किया था उस दिन, हेलो वर्ल्ड लिखा था हमने, यस सर। हेलो वर्ल्ड के बाद हमने एक और क्लास लिखी थी, कैलकुलेटर क्लास, ये मेथड बनाया, और ये लो सिंपल सी क्लास, ये है, ये भी वही चीज़ है। और इनमें क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नया थोड़ी कर रहे हैं। या टेस्ट फाइल खोल लो कोई सी भी, एप्पल टेस्ट, हाँ ये फाइल देख लो, ये सर लोग कुछ ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट लिख दिए। हाँ सर, तो पता तो है ऑब्जेक्ट हम लोग बहुत सारे क्रिएट किए हैं। सारे तो हम्म, ऑब्जेक्ट ही क्रिएट कर रहे हैं जो सारे तो नॉन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर स्टैटिक रहे हैं, मेथड है। इन्होंने कंस्ट्रक्टर को बहुत ही खतरनाक बना दिया। मेन फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ये हमने पढ़ लिए, इसको चार पिलर भी कहते हैं। फिर एनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग एब्स्ट्रैक्शन होता है, यस सर। इनकम्प्लीट होता है। और एग्जाम्पल्स जो मैंने बताया वो रेफर करो, अगर वो समझ में आता है खुद से लिख सको, तब बाकी के एग्जाम्पल पढ़ना शुरू करो। जैसे अब देखो ये इतना खतरनाक वर्ड लिखा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। यस हम्म, फिर उसने क्लास बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, काम वैसा का तुम देखो नजर मारो तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, फिर उसके चाइल्ड क्लास बनाया, यस दो सर। तीन, दो दो मेथड बना दिए, और एग्जाम्पल बड़ा हो गया, नहीं जरूरत इतना। पॉलीमॉर्फिज्म सिंपल, दो टाइप के हैं, कंपाइल टाइम, करंट टाइम, ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर इनहेरिटेंस पढ़ लिया, ये सही है, छोटा छोटा एग्जाम्पल बनाती है, ऐसा होना चाहिए। एक्सेस पैर हमने पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे बाद में। तो कल हम लोग सुपर और डिस्क्रिप्ट पढ़ेंगे, और ये एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। उसी में पैकेज भी कवर हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ ना, मैं कल मेरे दिमाग से स्किप हो जाएगा। तो अभी फिलहाल होमवर्क के लिए पहला होगा एक्सेस स्पेसिफायर, ये पढ़ के आइएगा, यस ओके सर। ये कल कवर भी करेंगे। और दूसरा, सुपर इन दिस। राइट, सुपर एंड दिस कीवर्ड्स, इनका पता है, पढ़ा तो होगा। यस सर। चलो ठीक है, सुपर एंड दिस कीवर्ड्स। और इसके बाद क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मत पढ़ना, ये फालतू है। पढ़ लो, थोड़ा बहुत आइडिया बच जाएगा कि ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या डिफरेंस होते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज है। कॉमनली यूज्ड लैंग्वेजेस, पॉलीमॉर्फिज्म देख लिया, दो टाइप के होते हैं। जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता नहीं है, पता नहीं इन्होंने क्यों लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि जावा है नहीं, यस सिर्फ ये सर। लिखा हुआ है। किसी ने मुझसे पूछा था ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में, कहीं पे याद नहीं आ वो रहा सी प्लस प्लस में होता है वो है। यस सर, वो मैंने इसमें नहीं फिर होता सर्च वो। किया था। ये देखो, ये सर इसका टॉपिक के ऊपर क्या लिखा है, ये इसने ये लिखा कि जावा के लिए सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है, तो इसने जेनरिक लिखा है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, और उस पर 3 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है। इसने ये लिखा कि जावा के कॉन्सेप्ट, देखो सी प्लस प्लस लिखा है, जावा लिखा है, ये सारे लैंग्वेज क्या है, ये जब सपोर्ट करते हैं ना ऑब्जेक्ट को,
यस तो सर। उसने एक जेनेरिक लिखा है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग जावा में नहीं होती, वो सी प्लस में है। सी शार्प में भी होगी, मैंने पढ़ा नहीं सी शार्प तो, क्योंकि डॉट नेट का काम है वो, तो हम नहीं पढ़ना। और इंटरफेस पढ़ लिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ लो, मतलब जितना हमने अब तक पढ़ा है वो सारा कुछ बेसिक, मतलब जावा के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो। उतना पढ़ोगे खत्म हो जाएगी बात। अभी सी प्लस आगे से जो होती है, कंस्ट्रक्टर समझो क्या होता है। तो फर्स्ट एक इमेज याद है ना जो हमने फर्स्ट देखी थी यहाँ पर इंट्रो में, हम अभी इसको कवर कर रहे हैं। ये देखो हम यस सब यही सर। कवर कर रहे हैं। थोड़ा धुंधला हो रहा होगा मे बी, पर यस समझ में आ सर, रहा है कि हमने हाँ ये सर। सब कवर कर लिया हमने स्ट्रिंग तक। फील्ड ब्लॉक, यस कल ये सर। देखेंगे स्पेसिफायर्स और सुपर डिस्क कीवर्ड। यस सर, कल की क्लास एक्सेप्शन। अगर उतना कवर कर लिया तो उसके बाद जो भी होगा, जैसे आज क्या है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये दो क्लास इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि हम एक अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग। यस सर। तो ये सर यहाँ से मजा आना शुरू एक होगा। आई बोलिए। सर, आयो जो है, इसे थोड़ा हाँ, सा, सर इसमें क्या होता है, मतलब ये आयो मुझे समझ ही नहीं आया अभी तक कभी। इनपुट आउटपुट, यस फाइल रीड मतलब, करना, राइट करना। सर कहाँ से? फाइल रीड करना किसी सोर्स से, मान लो तुम्हारे इस अच्छा। सिस्टम सी ड्राइव में, डी ड्राइव में कोई फाइल पड़ी हुई है, तुम्हें उसे रीड करके यहाँ पे प्रिंट करना, उसको कंटेंट कैसे लाओगे, यहाँ प्रिंट करना है कंसोल पे। तो यहाँ कुछ जावा कोड लिखोगे जो उस यस फाइल को वहां सर। से रीड करेगा और यहाँ प्रिंट कर देगा। या फिर तुम चाहोगे कि मैं कुछ एंटर कर दूं एबीसीडी, और जब कोड चलाऊं तो वो एबीसीडी एक फाइल में राइट हो जाए, एक फाइल बने उसमें राइट हो जाए। ओके कैसे सर। करोगे, आइयो पैक कैसे करोगे। यस वो सर, हम आई करेंगे पैकेट। एक्चुअली, ठीक है। यहाँ लिखेंगे वहां फाइल बन जाएगी और राइट भी हो जाएगा उसके अंदर। मजा आएगा तब करोगे तो। तो इंटरेस्ट आएगा तो ही मजा आएगा क्लास में, वरना फिर बोर हो जाओगे, फिर मुझे परेशान करोगे। ठीक है भाई विपिन, डन। ओके सर, डन। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। और जो ये होमवर्क दिया है उसको थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना, ताकि ओके समझने में सर। आसानी होगी। मैं होमवर्क ऐसे देता हूँ कि ये टॉपिक हम कल कवर करने वाले हैं, तो खुद से पढ़ लो, एग्जाम्पल बना लो, बेटर रहेगा अगर आता है तो। फिर जब मैं पढ़ाऊंगा तुम क्रॉस क्वेश्चन कर पाओगे, वरना फिर यस यस ही करते रहोगे, है ना, समझ रहे हो। यस सर। तो टॉपिक आता है तो अच्छी बात है, कुछ नया पढ़ लो उसी टॉपिक में कि अच्छा मुझे तो ये पता है कि सुपर क्या होता है, अब मैं सुपर के और फंक्शनलिटी पढ़ूंगा जिसके आज तक मैंने कभी एग्जाम्पल लिखे नहीं। और वो कल मैं सर से पूछूंगा, मैं तो ऐसे ही करता अगर तुम्हारे जगह होता तो। ठीक है, चलो फिर एंजॉय करो, कल मिलते हैं सेम टाइम। हाँ, बाय बाय, गुड ओके नाइट। सर। गुड नाइट सर।